व्हाट इज द लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन? लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि आपके पास अगर कोई चीज दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन है, if f is any function of alpha and beta, two independent variables, and when we apply the Legendre transformation, then one variable will be converted into the new variable that will be a function of partial f over partial alpha. अब उसे g कह दो, कोई भी कह दो, that is q. But for example, if you don't need alpha, then that will be converted into the partial f over partial alpha comma beta, or if we don't need a b, then that will be you can convert the beta into alpha will remain the same. The new function will be function of alpha, and that will be independent from the beta. You can in some books you write beta under this transformation alpha will remain the alpha naught, mean alpha will remain the alpha naught, mean that will be alpha is constant, g will be constant with respect to alpha. Similarly in this case beta will be अच्छा इसे g की बजाय कुछ और कह दो क्योंकि पहले हमने g यूज किया है, तो if we use चलो g रहने दो, mean if in second case beta will be constant. Okay, so this will be b naught. So what is the purpose of Legendre transformation? Legendre transformation what is the purpose of Legendre transformation? It always use one unrequired variable into it do always use to convert one unrequired variable into the new variable, but with some condition. ये नहीं है कि आप अपनी तरफ से कोई भी वेरिएबल सोच सकते हैं, but the new variable will there will be some conditions on a new variable. That what is that should be a partial derivative of old function with unrequired variable with respect to unrequired variable. f is a old function and alpha is unrequired variable. जो आपको पास unrequired variable है उसकी respect derivative लेते हैं. So what is the purpose of the Legendre transformation? It transforms the old unrequired variable into the new variable, which is the partial derivative of old function with respect to unrequired variable. Okay, so I have already explained in last time. I have already explained. So this is actually the Legendre transformation, and we have done. Okay. Okay, so what was the next exercise? Exercise was prove that f alpha beta that is converted into new variable g, that is the what was that? That was the f alpha beta minus partial f over partial alpha. That was the prove that this transformation, prove that the transformation ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने अप्लाई किया, ठीक है. When we apply this transformation is Legendre transformation. Okay, or we can say that or the g is a function of new g is function of
partial f over partial alpha beta, or we can say that G is सर थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा काइंडली। ये कल का लिखवाया था आपको सारा। सर जी आवाज नहीं सही आ रही। अब आ रही है? वो आपके नेट का मसला होगा, बाकी तो मसला। तो G is independent from alpha but depend on beta as well as partial f over partial alpha. So this will be so G is the independent from alpha but dependent from the beta as well as the partial alpha. You can say that that is not gamma, but that is the new function partial f over partial alpha. Now, how we can prove it? As I have already explained, or we can prove that this function g will be alpha. Here, alpha will be alpha naught. इसका मतलब यही होता है. Alpha naught mean that is independent from the alpha. That is constant with respect to alpha. Okay. For no proof or solution. So for this purpose, I have written G as a f alpha beta minus partial f over partial alpha multiplied by alpha. Whenever we want to see that is independent from any function or not, or that are depending upon one variable or other variable, then we should take a derivative. So we take a derivative dg. We know that the derivative of f will be partial f over partial alpha d alpha plus partial f over partial beta. F is understood, that is the function of alpha beta. Okay, so that will be a beta. Then that will be a minus. We have to take the partial f over partial alpha multiplied by alpha. Okay, so we write it again, partial f over partial alpha d alpha plus partial f over partial beta d beta minus the product formula will be applied because here this is a, we can say that this is a and this is function of this is b. So product formula, derivative of first the partial f over partial alpha plus when we multiply with the minus, then that will be first function will be as it,
and derivative of second. But we know that this term is same as this, so this will be cancelled out from this. Okay, and the result will be equal to so the result will be equal to partial f over partial beta d beta minus d partial f over partial or I can write it in this way. Okay, sorry, I can write it this way, that minus d partial f over partial alpha. Okay, so here is alpha, but we know that or we can write it in this form, that partial f over partial beta d beta plus minus alpha d partial f over partial, this way. Okay, so from here we can see that the result is depending upon two variables. One is this d beta, and one variable is and one it is depending upon this variable. Okay, so result are depending upon two variables. So I can say that the g is actually the not function of it is independent from alpha, because there is no change with respect to alpha. So new function g, this implies that our g is actually the function of beta and partial f over partial alpha. Okay, okay, if we define that this is equation x, okay, and if I take the derivative of this dg, then this dg will be equal to partial g over partial beta d beta plus partial g over partial f over partial alpha d partial f over partial alpha. If I say that this is equation y, okay, सर थोड़ी स्क्रीन छोटी करिएगा, मुझे पूरी लाइन एक साथ में नजर आए। मैं कह रहा था रिकॉर्डिंग बाद में देख लेते तो जरा ज्यादा इजी ना हो जाता। वैसे तो पूरी लाइन नहीं नजर आ रही है ये, जो लिखने में फिर मुश्किल, वहां आपको स्क्रीन बड़ी नजर आई, मेरे पास जो टैब है वो छोटा है। एक दफा ये आप नोट कर लो, बाकी जो रह जाता है वो उस पर आप कर लेना, क्या कहते हैं। So equation x and y को if we comparing the x and y,
if x and y, तो x और y को आप कंपेयर करते हो, if we compare the x and y, then the coefficient of we are comparing the coefficient of so उस तरह भी लिख लो, can say for simplicity we can write by comparing the coefficient of d beta and d partial f over partial alpha in x and y, equation x and y. What will be happen? You know that if you compare the coefficient of x and y, this will be equal to this, okay. Partial f over partial beta will be equal to partial g over beta. That is that. Partial f over partial alpha is equal to partial g over partial beta, right? You will get one this, and the second equation, this will be equal to this, okay. Alpha will be equal to minus partial g over partial alpha over partial alpha, ठीक है, okay. So this will be your result. So and the next equation is सर ये फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे पार्शियल एफ ओवर पार्शियल बीटा नहीं आएगा? one minute, please. That will be equal to you are right. This is a partial. Thank you. Thanks for correction. ठीक है. So this will be okay. This will be your result. अब ठीक है, क्लियर हो गया? इससे थोड़ा नहीं सर, इससे ऊपर से जब एक्सरसाइज की स्टेटमेंट लिखवा रहे थे, पिक्चर ले लो ना, नहीं तो मैंने कहा ये रिकॉर्डिंग तो ऊपर आ ही जाएगी आपके पास। ये लो, आपने एक्सरसाइज लेनी है तो बहुत छोटा हो जाएगा। ये ठीक है, अब ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम। Okay, so as I have already explained that why we use the Legendre transformation in on a Lagrangian, because we know that in now we will use it on the Lagrangian. Okay, why we will use why we will apply the Legendre transformation on Lagrangian? Because Lagrangian is function of position and velocity. Okay, and velocity can never velocity can to quantize, we can only quantize the momentum. Yes, at some instant we can quantize the velocity, but we can quantize only the generalized velocity, quadratic velocities, by using the path integral formalism. And path we know that path integral formalism is a very difficult and very complicated.
because we have to, according to path integral formalism, a particle take an infinite path. Okay, so we have to integrate infinite time. And one thing is it is difficult, and second, it is only possible for only the quadratic velocity. So generally we can't quantize the velocity, so that's why we need we have to convert the velocity into the momentum. Okay, so firstly we have to convert the velocity into the momentum. So that's for that that's why we will use Legendre transformation to convert Lagrangian into Hamiltonian. Hamiltonian will be function of position and momentum. And then next question is why we don't use the Hamiltonian directly. Why firstly we find the Lagrangian and then we quantize. When we firstly we find the Lagrangian and then we transform into the Hamiltonian and then quantize. Why we have to follow these paths? Why we don't? Why we can't take the shortcut? Why we can't apply the shortcut? Because as velocity can't be quantized, generally velocity can't quantize. Similarly, it is very difficult to make a momentum, Lorentz invariant momentum, to get the Lorentz invariant momentum. But this purpose, firstly we have to find the velocity and then we have to convert it into the. So we have to follow this procedure by action principle. First find the Lagrangian, okay, Euler-Lagrangian equation, then we will convert into the its Hamiltonian by applying the Legendre transformation, and third step will be we will quantize. If we are interested in any general dynamics or unification, or we want to develop any type of dynamics, we have to follow these three steps. Firstly find the Lagrangian, then by applying the Legendre transformation find the Hamiltonian, and then quantize that. Okay, so these are the three steps. Okay, so how we will apply the Legendre transformation on Hamiltonian? Apply Legendre transformation to Lagrangian to get the Hamiltonian and also find the Hamilton equations. Okay, as we have already proved that if f is function of alpha and beta, then we will get the new variable when we apply the Legendre transformation. Then we will get a new variable g that will be function of partial f over partial
alpha, that will be equal to beta, and this will be equal to f alpha beta minus partial f over partial alpha multiplied by alpha. We have already proved that. That is equal to, this is the Legendre transformation. Okay. Similarly, if we transform partial f over partial beta by applying the Legendre transformation, that may be a G, but we are not interested. But if alpha is required function, but beta is undesired function, mean that will be G and partial f, if we are interested to convert it into this function, partial beta. Okay. In the last time, alpha is converting in last exercise, alpha is converting into the new variable. Now beta is converting into the partial f over partial beta. So now the second variable is changing. So because ordering is changing, so we will multiply minus with the, we will because the order is changing, so we will multiply with the minus. So the result will be, now the result will be equal to f alpha beta minus partial f over partial alpha alpha. ये नहीं आएगा. This will be a now, this will be a wrong, because now if we are not converting alpha, we are converting beta. So सर अब partial f over partial beta into beta आएगा ना? Yes, that's I want to. No, that's exactly that. That is the answer. That should be a this. Okay, this will be this. Okay, and now this will become partial f over partial beta beta. So this will be. Okay, so new function will be function जो कि आपके पास नया आ रहा है, g will be so this g will be okay, so this will be the answer. सर इसमें एक क्वेश्चन है इसी टॉपिक के मुताबिक, जी जी, हमने यहाँ पे सर अल्फा को क्यों एलिमिनेट किया है, बीटा को क्यों नहीं किया? नहीं, ये अब सिचुएशन हमने कहा कि आपको पता है अल्फा या बीटा दोनों में से किसी को आप गायब कर सकते हैं. इस दफा हमने बीटा को किया है, पहले हमने अल्फा को किया था, इस दफा हमने बीटा को किया. ठीक है, लास्ट टाइम हमने अल्फा को कन्वर्ट किया था कि अल्फा कंडीशन है वैसे ही जिसको मर्जी करे हम करना. हाँ, जिस मर्जी को कन्वर्ट कर. ठीक है, जो भी अनरिक्वायर्ड होगा ना, ठीक है, आपके पास दो फंक्शन है, दोनों में से कोई भी अनरिक्वायर्ड है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. मैंने आपको मेरा ख्याल है जिस दिन डेफिनेशन लिखवाई थी लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन की, उसी दिन बताया था कि जो भी आपका अनरिक्वायर्ड होगा ना, तीन साहब समझ आ गई है? जी जी सर, मैं सर ये हमेशा अप्लाई दो ही वेरिएबल पे होगा जो f होगा, दो हाँ से जी, ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं? नहीं, सिर्फ दो पे. ये अभी तक फार्मूला जो है दो के लिए बना हुआ. ठीक है, और आपके और दूसरी एक और बात भी है कि अच्छा, पेपर में मैं वो बार बार पूछ रहा था, अतीक भी पूछा था, पेपर में अल्फा बीटा नहीं लिखा होगा, पेपर में कुछ और भी लिखा जा सकता है, साई भी लिखा जा सकता है, काई भी लिखा जा सकता है, टा भी हो सकता है. अल्फा बीटा की जगह एफ की जगह साई भी हो सकता है, मतलब बिल्कुल इंडिसेस चेंज भी हो सकते हैं. इशू ये
अब हम कैसे इसमें डिफरेंशिएट करेंगे कि हमने बीटा एलिमिनेट करना है या अल्फा करना है? हाँ नहीं, वो तो लिखा होगा ना जिसमें कन्वर्ट करना होगा, तो वो कन्वर्ट जो होगा वो इक्वेशन से पता चलेगा। मतलब आपको पता होना चाहिए कि अगर ये देखो, अगर आप इस इक्वेशन से आपको पता होना चाहिए, ये इक्वेशन लिखी हुई है तो आपको पता होना, ये इक्वेशन सॉरी, अगर आपके पास ये इक्वेशन लिखी हुई है तो इसका मतलब है बीटा कन्वर्ट हो रहा है। अगर यानी बीटा मीन सेकंड वेरिएबल, आपको ये पता होना चाहिए। अल्फा बीटा कुछ नहीं है, ये नाम है ना। जनरली अल्फा बीटा हो जाए, एक्स वाई हो जाए, कुछ भी हो जाए। अल्फा बीटा की जगह एक्स वाई भी हो सकता है, एफ की जगह साइन एक्स भी हो सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं आपको ये भी पेपर में दे सकता हूं कि साइन जो है वो फंक्शन है थीटा फाई का। ठीक है, आपने इसे कन्वर्ट करना है, लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं थीटा पे लगा दो, थीटा नहीं चाहिए, तो इसकी लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगी? साइन थीटा की क्या आएगी? पार्शियल फाई और पार्शियल, अगर हमें थीटा नहीं चाहिए, चलो अगर हमें हाँ, अगर हमें थीटा नहीं चाहिए, इफ थीटा इज अनडिजायर्ड फंक्शन, तो आपके पास नया रिजल्ट आएगा, वो आएगा थीटा इनटू पार्शियल एफ, पार्शियल पहले साइन ऐसे आएगा, साइन थीटा फाई मतलब फंक्शन एज इट माइनस पार्शियल साइन थीटा फाई ओवर पार्शियल थीटा मल्टीप्लाई बाय थीटा होगा सर, ऐसे ही आएगा। थीटा मल्टीप्लाई बाई थीटा। ठीक है, और पार्शियल थीटा का डेरिवेटिव, और इसको वैसे लिखें तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? पेपर में इस तरह के बड़े क्वेश्चन आने हैं, पिछली दफा नहीं आए, इस दफा आएंगे जरूर। ये क्या आ जाएगा? साइन थीटा फाई, तो इसका साइन का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट क्या आ जाएगा? कॉस थीटा फाई। ठीक है, समझ आ गई? यस सर, ठीक है सर। अच्छा, ये भी आ सकता है आपके पास, इसके अलावा आपके पास ऐसे भी हो सकता है, एक्सरसाइज देख लें, ये भी आ सकता है। चलो मैं साइन ही ले लेता हूँ समझाने के लिए, वैसे कोई भी वेरिएबल वहां, साइन एक्स कॉस वाई ले लें या कॉस वाई ले लें। अब आपने वाई को कन्वर्ट करना है, ये तो टोटल एक फंक्शन बना है ना, यानी ये आपके पास एफ एक्स वाई बन जाएगा ना, ये समझे? ठीक है, तो इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? साइन एक्स। अच्छा, अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं अब y को कन्वर्ट करते हैं, तो मैंने आपको क्या कहा था? -7 बाहर मल्टीप्लाई होगा और y को कर रहे हैं, ठीक है, सेकंड वेरिएबल को, साइन x cos y माइनस पार्शल साइन x cos y ओवर पार्शल y। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है बच्चों, या ठीक है? साइन ऑफ वाई तो नहीं ना आएगा नहीं नहीं, y आएगा ना, वेरिएबल चेंज कर रहे हैं आप, फंक्शन। साइन ऑफ एक्स तो नहीं ना आएगा बेसिकली, हम वाई के रिस्पेक्ट से नहीं कर रहे, सिंपल कॉस वाई नहीं आना चाहिए। पार्शियल y डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय y से कर रहे हैं ना, पार्शियल y ओवर फंक्शन तो पूरा आएगा ना सर पार्शियल, अच्छा फंक्शन पूरा आएगा, ठीक है सर। फंक्शन तो फंक्शन आपके पास sin x cos x y है ना, तो
आगे आपके पास आ जाएगा माइनस साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस वाई बाहर आ जाएगा वाई और कॉस वाई बाहर आ जाएगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? नहीं सॉरी मैं गलत लिखा। साइन एक्स बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई कांस्टेंट है, तो आपका कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा? बस माइनस का साइन वाई माइनस साइन आ आएगा। जाएगा। माइनस साइन वाई आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा। दिस विल बी आंसर। समझ आप लोगों ने ना इसको ना ये प्रेशर वॉल्यूम जो थर्मोडायनामिक्स के लॉज नहीं पढ़े थे उसमें प्रेशर वॉल्यूम उसमें देखोगे ये लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन इसी तरह यूज होती है। यही वाला फार्मूला है ये अतीक आप लोगों के जिम्मे है, ठीक है ना? ये लाजमी बेटा आप लोगों Yes. ने करना है अपने मैं एग्जांपल लाजमी सर। खासतौर पे थर्मोडायनामिक्स के वो पढ़ते हैं ना यूवी कन्वर्जन एच यूवी उसमें भी कन्वर्ट करते हैं। यस सर। बिल्कुल आप यस सर देखोगे करते यही हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही फार्मूला है। तो वहां कोई बताता राइट नहीं है सर। टीचर उस वक्त आपको मतलब कि ये लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या है। लोग वैसे ही थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ फोर्थ लॉ पढ़ाते हैं ना, उसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सी जगहों पे यूज होता है जैसे मैंने आपको कहा, लेकिन यहाँ सीएम में हम इसे सिर्फ लैग्रांजियन को हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट करके यूज करते हैं। ठीक है, मूव कर दूं आगे मैं चलूं? यस सर। यस सर। ओके मुझे इसलिए रिमूव करना पड़ा, वो जो पिछली एक्सरसाइज थी ना वो मैंने करनी थी, तो मेरे डिजिटल बोर्ड में इतनी जगह नहीं है, छोटा सा तो मेरा बोर्ड है लेकिन मुझे बहुत पसंद है। अच्छा अब हमारे पास ये हमने ये गाइड किया था अगर बीटा कन्वर्ट हो रहा हो, ये हमने क्यों किया वाई एक्चुअली जो एल में जब हम करते हैं तो एल लैग्रांजियन किसका फंक्शन है? क्यू एंड क्यू डॉट का। ठीक है, लैग्रांजियन किसका फंक्शन है? क्यू एंड क्यू डॉट का, यानी इसमें क्यू आपके पास अल्फा है और क्यू डॉट बीटा है। ये प्लीज बीच में ये किसकी प्लीज अपना माइक जो है आप साइलेंट रखें। आपने पहले भी देखा कि कितना प्रॉब्लम आता है उस लेक्चर में, ये आप लोगों के ऑनलाइन लेक्चर की माइक की वजह से प्रॉब्लम आया। प्लीज अपना माइक ऑफ रखें। मैं ये कह रहा हूं कि लैग्रांजियन में क्या होता है, आपने मैं दोबारा बता देता हूं, ये जो लैग्रांजियन है ये किसका फंक्शन होता है? दैट विल बी फंक्शन ऑफ क्यू एंड क्यू डॉट। तो दिस विल बी योर अल्फा एंड दिस विल बी योर बीटा एंड दिस आप समझे कि ये आपके पास एफ है। ठीक है, वो जो पहले हमने डिफाइन किया, दैट इज मूविंग टूवर्ड द जी, जी के एच, यहाँ हमने इसे मूव कराना है, जनरल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एच एच में। ठीक है, और ये किसका फंक्शन होगा? इट शुड बी अ फंक्शन ऑफ क्यू पार्शल एल ओवर पार्शल क्यू डॉट, ऐसे ही है ना? अल्फा एज इट रह रहा है और ये आपका बन रहा है पार्शल एफ ओवर पार्शल। ओके, इनटू क्यू डैश आएगा। क्यू डैश क्यों आएगा? क्यू तो वैसे ही रहेगा और पार्शल एल ओवर पार्शल क्यू डॉट में वो कन्वर्ट होगा। ओके, दिस इज द यानी हमने ये इस पे लैग्रांजियन पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई ठीक है ठीक, ओके। ओके, तो वैल्यू पुट कर दो इसमें। क्यू जो है वो अल्फा है और क्यू डॉट बीटा है एंड सेकंड वेरिएबल इज चेंज। ओके, सो अकॉर्डिंग टू अबव इक्वेशन अगर आप बात करें तो जो एच है वो किसके बराबर होगा? ये क्या लिखा हुआ था हमने जब बी कन्वर्ट हो रहा है? पार्शियल एफ क्या है आपके पास? एल, क्यू एंड क्यू डॉट with respect to derivative beta q dot and q dot।
या माइनस आपने क्या फंक्शन एफ, यहां से आ जाएगा एल क्यू, या क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छा एल तो डिसेस फ्री है और ये आपके पास जो के है इनके ऊपर ये डमी डिसेस, क्योंकि के एज ए ट्रांसफॉर्म होता है ना, ये वेक्टर मैंने आपको बताया था सिंगल रैंक टेंसर है, तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर हो गया? एच है, ये आपके पास एच आ जाएगा। ओके, अरे चुप कर गए। Yes, sir. जी Yes, सर, sir. जी सर, इधर है हम। रोजा बहुत लगा पड़ा है अच्छा, इसको। ये तो है सिंपल, ये तो है सिंपल क्लासिक मैकेनिक्स में। तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, वैसे ही मैंने आपको पहले बताया हुआ है हमारा क्योंकि ये जो है एक्चुअली हमारे पास जो है ये हमारे पास सीएम जो है ये एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स में जो है रिलेटिविस्टिकली डील करे। अभी अब मैंने जनरलाइज नहीं ली, अभी जनरलाइज जो बिल्कुल प्योर एडवांस का है वो बाद में आएगा, पर ये है आपके पास नॉन रिलेटिविस्टिकली जो अभी हमने रेड में लिखा है। ठीक है, ये है दिस इज फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, नॉन सर जी। सर जी, आपकी इतनी धड़ल्लेदार आवाज का राज क्या है? रोजे के साथ हमारी तो आवाज ही नहीं निकल रही। आप लोगों की आवाजें सुन सुन के, इतनी प्यारी आवाजें आप लोगों की सुन सुन के ना। सर अभी तो बोला नहीं जा रहा, भाई हम कह रहे हैं आप कैसे बोल रहे हैं इतना सारा, वो भी इतने धड़ल्ले से। सिर्फ बोल नहीं रहा, ये भी सोचो कि साथ साथ सोच भी रहा हूँ। साल अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। सर काइंडली फ्री कर देना अब हमें, बस टाइम थोड़ा सा ही रह गया। ये बस थोड़ा सा लिख के मैं फिर आपको ये सिर्फ ओके, थैंक यू। नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स आ गया। ठीक है, फॉर रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स क्या आ जाएगा आपके पास, एच किसके बराबर आ जाएगा, सिर्फ ये लिख लूं, ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा, पार्शियल एल क्यू क्यू डॉट पार्शियल क्यू, पहले तो ऐसे लिखे। तो प्लीज जल्दी कर दें, हमने तैयारी बनानी है। अच्छा बस एक मिनट दे दोगे आप? अच्छा, जो पोजीशन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, कंट्रावेरिएंट। इसे कंट्रैक्ट किससे करना है, कोवेरिएंट के साथ सर। ठीक है, और वो क्या होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, कॉलम इंडिसेस। अगर जो पहले वाला है वो कॉलम इंडिसेस होना चाहिए और दूसरा वाला रो इंडिसेस। ठीक है, इस वजह से क्यू के ऊपर रो इंडिसेस और जो पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं क्यू वो कॉलम इंडिसेस होगा। ठीक है, माइनस एल क्यू क्यू डॉट, लैग्रांजियन पे कोई इंडिसेस नहीं होगा, आपको पता है लैग्रांजियन विल बी इंडिसेस फ्री। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तो बाकी हम इससे आगे जो है वो कल देखेंगे इंशाल्लाह ताला। 11 बजे कल क्लास है। दिस इज फॉर रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है। हाँ जी, नीचे वाला फॉर रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। सर लिख दें। थैंक यू सर। मैं लिखता हूं और अभी हमने इसे जनरल डायनामिक्स का लिए भी लिखना है, ठीक है ना? वो इंशाल्लाह सर हम कल लिखेंगे जरूर जी सर, सर, कल इंशाल्लाह। लिखेंगे इंशाल्लाह। अब ठीक है, हमने ओके, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह Thank you, हाफिज। अल्लाह sir. हाफिज अभी तो ये सर। क्वेश्चन ड्राइव भी करनी है, इसकी हैमिल्टोनियन क्वेश्चन करनी है इंशाल्लाह सर। सर जी इंशाल्लाह। कल सारा कुछ करेंगे। सर रोजे की हालत में दुआ में याद रखिएगा सर। अच्छा, आप देखो गप्पे नहीं याद आ रही, क्लास के दौरान लेक्चर के दौरान गप्पे याद आती हैं, ठीक है, ताकि क्लास सर जी अब हमसे बोला नहीं जा रहा ना हमें। मारो कि एच जो है, जो हैमिल्टोनियन हमारे पास आया था, H which is Hamiltonian, that will be equal to partial L, जो L है वो फंक्शन है Q एंड Q डॉट का,
पार्शियल क्यू डॉट, अच्छा यहाँ के ये 4 वेक्टर है, के 4 वेक्टर है और दैट विल, अच्छा थोड़ा सा यहाँ गलती है, बोला मैं ये इसलिए जानबूझ के गलत लिखा था कि आप लोग बोलेंगे, खुद बताएंगे यहाँ क्या गलती है। ये जो मैंने ऊपर इक्वेशन लिखी थी ये मैंने सिर्फ इस वजह से कि ताकि आप लोगों को ना सही तरह चीज समझ आ सके, और यहाँ यही आपके पेपर में जो है ना वो जो है टेस्ट होता है अमूमन, जो कि आप गलत कर जाते हैं। क्या गलती है बच्चों इस इक्वेशन में? कुछ गलत हमने ये कहा था, एक दो थे पहले, तो एक तो ये था कि आपका जो पहला इंडिसेस है दैट शुड बी ये ना कॉलम इंडिसेस, और दूसरा जो होना चाहिए रो होना चाहिए। ये तो ठीक है कि यहाँ के जो है कॉलम इंडिसेस है, ये बिल्कुल ठीक है, कॉलम इंडिसेस है, और ये रो है, और कॉलम विल बी कंट्रैक्ट विद द रो, बिल्कुल ठीक हो रहा है। लेकिन मेन मसला क्या है कि यहाँ जो कॉलम है मैंने क्या किया है, डेरिवेटिव के एज ए सबस्क्रिप्ट पे आ रहा है। मैंने आपको कहा था जो चीज भी डिनोमिनेटर में आएगी, ठीक है, अगर वो सबस्क्रिप्ट में आए तो वो कंट्रावेरेंट होगा, अगर सुपरस्क्रिप्ट के तौर पे आए तो वो कोवेरेंट होगा, और कोवेरेंट शुड बी कंट्रैक्ट विद द कंट्रावेरेंट, ऐसे ही है ना। तो एक्चुअली हमने यहाँ जो गलती की है वो ये वाला के है, ये जो है ना ये इट शुड नॉट बी कोवेरिएंट, क्योंकि अगर ये कोवेरिएंट होगा तो ये डेरिवेटिव कंट्रावेरेंट बन जाएगा, तो कंट्रावेरेंट तो कंट्रावेरेंट से कंट्रैक्ट नहीं करता ना, तो वी शुड रिमूव इट, हमें इसको रिमूव करना है, ठीक है। इट शुड बी Yes. ये आपको याद होगा मैंने बताया था आपको पिछले दफा, Yes. डेरिवेटिव में जो चीज नोमिनेटर में आएगी उसका उसके लिए जो कंट्रावेरेंट है वो कोवेरेंट बन जाएगा, और कोवेरेंट कंट्रावेरेंट में बन जाएगा। अब ये कोवेरेंट है, यानी हमने कंट्रावेरेंट की फॉर्म में एज ए सुपरस्क्रिप्ट लिखा है, तो अब ये कोवेरेंट बना। क्लियर हो गया? Yes, sir. ये आपके पास ये आ जाएगा, ओके राइट सर, यस सर। अब ये कोवेरिएंट है सर, अब ये कोवेरिएंट है, ये चीज आप कोवेरिएंट है। मैं बताता हूँ, ये आप कोवेरिएंट है, ये वाला आपको मैंने बताया हुआ है ना आपको, पार्शियल ओवर पार्शियल क्यू के जो है दैट विल बी इक्वल टू कोवेरिएंट क्योंकि ये मैंने आपको बताया था, याद होगा। और Yes, sir. Yes, sir. और पार्शियल क्यू जो कोवेरिएंट है दैट विल बी क्योंकि ये मैंने जब आपको टेंसर पढ़ाया था, टेंसर वाला पूरा लेक्चर्स आपके जो है ना वो अपलोडेड है, आपको पता है यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, तो ये भी इंशाल्लाह ताला लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे। तो दैट्स व्हाई वो आपके पास कोवेरिएंट आएगा। वो मैंने गलत लिखा भी इसीलिए था ताकि आप लोग जो है ना आपका जो सोए हुए लोग होंगे चांदे बीच में सो भी कुछ रहे होंगे ना, अचानक उन्हें लगे ये क्या हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो ये नोट कर लिया, वैसे तो मैं डिलीट कर मतलब अरेज कर सकता हूँ, है ना जी सर, कर दूँ। इसको, ताकि हम जो है ना आगे से उसको सही तरह चल सके। लेकिन ये आपने अपनी कॉपी पे लिखना है, बेशक इधर मैंने इधर से अरेज कर रहा हूँ, आपने उधर से अरेज नहीं करना। मेरे पास क्योंकि डिजिटल बोर्ड छोटा है ना, तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी जगह बनाने के लिए जो है ना उसको कुछ चीजों को अरेज करना पड़ता है, ठीक है। ओके सर, यस तो, सर। लेकिन ये आपके नोट्स का पार्ट है, लेकिन आपने लिखना है नोट्स में, ठीक है। तो अब वी हैव टू प्रूव दैट, अच्छा एक छोटी सी एक्सरसाइज है कि अगर आगे करना है तो हमें एक्सरसाइज पहले आगे चलने से पहले वी हैव टू प्रूव दैट पार्शियल एल ओवर क्यू एंड ये जो क्यू डॉट है दैट इज एक्चुअली दी ये आपने वैसे सीएम में पढ़ी होगी, बीएस के सीएम में पढ़ी होगी, दैट इज डिफाइंड एज अ मोमेंटम कंजुगेट। ये कराया तो नहीं था आप लोगों को मैंने पहले? नो सर। ठीक है, तो इसका मोमेंटम कॉन्जुगेट है, ये मोमेंटम कॉन्जुगेट है, ये डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी वैसे।
ds में, ठीक है, कि q डॉट से नहीं तो ये मोमेंटम कंट्रीब्यूट होता है। तो आपके पास हमने काइनेटिक एनर्जी जो फंक्शन है ये किसका फंक्शन था, q डॉट का माइनस पोटेंशियल एनर्जी को हमने फाई से रिप्रेजेंट किया था इसी दफा। जी सर, फाइव फंक्शन ऑफ क्यू। ठीक है, और ये था हमारे पास q डॉट, अगर आप ये नीचे करके देख लेते हैं थोड़ा सा, q डॉट के ये है, ठीक है। तो लेट फर्स्टली कंसिडर, फिर इसको नोट कर लें। हाँ करें, फर्स्टली कंसिडर फाई q एंड q डॉट के ये सारा कुछ मैंने करवाया हुआ आपको पहले, ये मैंने फिर यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये चीज जो थी, ये चीज किसके बराबर थी, ये मैंने आपको प्रूव की हुई थी, दैट इज इक्वल टू 0, पोजीशन का डेरिवेटिव वेलोसिटी के रिस्पेक्ट 0। तो सो ये आपके पास 0 है, ये मैंने प्रूव पहले कराया था आपको पीछे, ठीक है, ये 0 के बराबर। नाउ वी कंसीडर द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या थी, नाउ कंसीडर नो कंसिडर, अब हम ऐसे कंसिडर करते हैं, ये आ जाएगा नो कंसिडर, आपने काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म को कंसिडर करते हैं ओवर q डॉट के, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व करना है, ये कैसे, अब हम इसे कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, का ये मैंने आपको प्रूव कराया था, याद होगा आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो ये अब हमने करना है, ये किसके बराबर है। तो हमने याद होगा मैंने आपको वही ये प्रीवियस लेक्चर्स में याद होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो कि काइनेटिक एनर्जी, if kinetic energy is function of r dot 4 vector में over r q, sorry, q dot k, ये जब आयलर लैग्रांज का प्रूफ कराया था, हमने ये प्रूफ किया था कि दैट इज इक्वल टू t
अल्फा और डॉट अल्फा क्यू डॉट के, ये प्रूव कराया था, याद आया? मोमेंटम की फॉर्म में हमने करवाया था, ठीक है। उस वक्त ये जो पी था ये भी आर का फंक्शन था, ये ध्यान में रखना, ठीक है। ये मोमेंटम भी आर का फंक्शन था। और फिर हमने कहा था क्योंकि kinetic energy is a scalar quantity, because kinetic energy is a scalar quantity, kinetic energy is, this is free, कोई इंडिसेस नहीं है kinetic energy, तो since kinetic energy index is free, therefore it will remain invariant for coordinates transformation. क्या मतलब था कि kinetic energy, if the kinetic energy is R, function of R dot, it will be converting, it will be remain this, that will be equal to that will be same, ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, पीछे भी किया था, that will be equal to kinetic energy as a function of velocity. Generalize, अगर पोजीशन को हम वेलोसिटी में कन्वर्ट, दैट विल रिमेन द इनवेरिएंट ऑल टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि तो दिस इंप्लाइज दैट, तो इसका जाहिर है हमारा आर जो है वो क्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जहां जहां आर था वहां क्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, मैंने आपको बताया था। तो आपके पास फिर काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी जो है आपके पास जो कि क्यू में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, ओवर क्यू डॉट के, दैट विल बी इक्वल टू, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू टी, ये पी अब क्यू का फंक्शन है, आर का फंक्शन नहीं है, ठीक है। टी अल्फा और पार्शियल क्यू डॉट अल्फा ओवर पार्शियल क्यू डॉट के, ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास अच्छा, अच्छा एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट क्या होता है? 1 होता है सर, 1 होता है, ऐसे ही है ना। एक्स का डेरिवेटिव एक्स के, और एक्स डॉट का डेरिवेटिव एक्स डॉट के रिस्पेक्ट, तो वो भी 1 नहीं होगा, 1 होगा। और एक्स का वाई के रिस्पेक्ट सर वो 0 होगा, वो 0 होगा, ठीक है। सो अल्फा और के आर सेम,
then that will be a 1. If alpha and k are different, then that will be a 0. ऐसे ही है ना? तो Yes, sir. आपके पास p अल्फा, और ये क्या आ जाएगा? ऐसी चीज को किससे हम क्रोनिकल डेल्टा से जाहिर करते हैं, ऐसे फंक्शन। ठीक है, अच्छा, ओके। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? अल्फा जो है ना सुपरस्क्रिप्ट के तौर पे नोमिनेटर में होता है, वो क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ। तो आपके पास ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, और ये प्रूफ मैंने करवाया हुआ है। ये क्या करता है? इंडिसेस चेंज हो जाते हैं, ये मैंने आपको पहले प्रूफ कराया हुआ। तो ये आपके पास चलो ठीक है। अच्छा, ये आपके पास ये आ गया। ठीक है, सो दिस विल बी अ काइनेटिक एनर्जी एंड q डॉट एंड दिस विल बी योर रिजल्ट। ये आपके पास रिजल्ट, ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। और वो दूसरा 0 हो गया, तो सो दिस इंप्लाइज दैट हो जाए। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। दिस इंप्लाइज दैट वो 0 वाली वैल्यू भी पुट करके, दिस इंप्लाइज दैट पार्शियल एल ओवर जो कि q एंड q डॉट का फंक्शन है, दैट विल बी इक्वल टू पार्शियल ये। अच्छा, यहाँ थे ना, अब ये h की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये जो चीज है आपकी, ये किसके बराबर आ गई? ये चीज हमने प्रूव कर दी। ये किसके बराबर है? p के आर, ऐसे ही है ना? ये p के, ये मैंने प्रूव कर दिया आपको। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो अब आपके पास हैमिल्टोनियन किसके बराबर आ गया? हम नेक्स्ट पेज ही करते हैं। इस पेज की, ये पेज हमारे लिए इतना अच्छा साबित नहीं है। अब अगला पेज। तो h आपके पास किसके बराबर आ गया? अब हमने जो प्रूव किया है इसके मुताबिक h किसके बराबर है? हाँ जी, h आपके पास आ गया अब p p k q डॉट k माइनस l q q डॉट, ये आ गया। यही था ना? हेलो, अब सारी चुप कर गए। Yes, sir. ये था ना? Yes, ये जो sir. ये चीज निकाली थी ना, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो जी सर। DH किसके बराबर आ जाएगा? उसी तरह पहले हमने जैसे किया था, हम चेक करना चाह रहे हैं कि मतलब अब क्या आ जाएगा हमारे पास। इसमें आपके पास यूके प्लस ये आ गया माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू के डी क्यू के माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट के डी क्यू के डॉट।
यह गलत है, नहीं ये दोनों चीजें गलत है। ठहरो, यहाँ भी तो एक में एल बार आना यहाँ कंट्रैक्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट यहाँ, लग रहा हाँ प्रोडक्ट फार्मूला, ठीक है। है जी। तो यहाँ आपके पास ठीक नहीं, प्रोडक्ट फार्मूला तो पहले प्रोडक्ट फार्मूला लगा है और दूसरे में हमारे पास जो है वो ये आ जाएगा, ऐसे ही जी सर, पहले में प्रोडक्ट जी। ये आपके पास है। कॉलम इज कंट्रैक्टिंग विद रो, कॉलम इज कंट्रैक्टिंग विद रो, ठीक है। कंट्रावेरिएंट इज कंट्रैक्टिंग विद दी, ठीक है। जो इसको क्या डॉट फॉर्म है, यहाँ डॉट आएगा तो ये ओके। और ये क्या चीज है, दिस इज ये क्या है, ये आपके पास ये क्या था आपके पास, ये आपके पास पी के, सर ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। ये पी के है, ऐसे ही है। हेलो, ये आपके पास पी के, तो इसका मतलब है कि ये चीज दैट विल बी कैंसल विद दिस, ऐसे ही है। यस सर, इससे कैंसिल हो जाएगी पर ये कैंसिल हो सीधा जाएगा, नहीं। ये आ गया आपके पास। तो आपके पास जो नेक्स्ट रिजल्ट आया वो आ गया डी टी के, क्योंकि ऐसे नहीं लिखते हैं बल्कि हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसे भी ठीक है वैसे, चलो इसी तरह रहने दें। क्योंकि अभी हम क्लासिकली पढ़ रहे हैं, क्वांटम में होता है कि हम जो है ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। सीएम में क्योंकि ये कम्यूटिंग ही है, ये ऑपरेटर नहीं है, ये आ गया। और माइनस पार्शल एल ओवर पार्शल क्यू डॉट के डी क्यू के आ गया। ये आपके पास डी एच का रिजल्ट है। अब तो बहुत जबरदस्त स्मूथली चल रही है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही, उसको तो पता नहीं क्या मसला हुआ था। ये आपके पास आ गया, ठीक है। कोई मसला इस वक्त तक, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है, ऐसे ही है। क्लियर है सर यहाँ तक। अच्छा, तो अब मसला यहाँ आया कि ये चीज क्या है, अब हमें इसे फाइंड करना, व्हाट इज ये क्या है, वो हमने ये देखना, ये क्या है। तो वी कैन फाइंड दिस। अच्छा, एक तो आपको एच यहां से आपको दो चीजें पता चली। अच्छा, अच्छा ये अब हमने चेक करना है। अब ये क्या है, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज व्हाट इज पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू के, ये आपने फाइंड करना। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, हाउ वी कैन फाइंड दिस, हम कैसे कर सकते हैं। We now derive from Euler-Lagrangian equation d by dt partial L over partial Q dot K minus partial L over partial Q K that was equal to 0 according to Euler-Lagrangian equation, ऐसा ही है ना। Yes, sir. तो so partial L over partial Q dot K that will be equal to d by dt partial L over partial Q dot QK, ये आ जाएगा।
ये आ जाएगा, ठीक है। और इसे ऐसे लिख सकते हैं, और d by dt is equal to, तो ये आपके पास ये हम we have already proved that is equal to p k, ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया, ठीक है। we have already proved that। Okay, sir. अच्छा, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे सर जी। सर मम्मा मारेंगी, अब इफ्तार की तैयारी करनी है, काफी देर से बुला रही हैं। सर जी बस करें, हमारे घर भी इफ्तारी है आज, मेरे आप लोगों ने आना है। बस Yes, करें sir. अब। 4 बजने वाले। एक सेकंड, ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगा? चलें 4 तो बजने दें, अभी है 8 मिनट। या काम करने दो। 8 हाँ, मिनट। चलो, अभी सर 8 मिनट। आपने सिर्फ दही लेके आनी है, हमने पूरी इफ्तारी बनानी है, कुछ खुदा का खौफ करें। बात सर सुनो, क्लास में बीच में घर वाले पूछते हैं। क्लास में नहीं बीच में बोलना किसी ने, ठीक है। मुझे म्यूट ऑल ठीक करना है। पड़ेगा नहीं तो। चलो, बल्कि मैं म्यूट ऑल कर रहा हूँ अब अभी। अब कोई अपने आप को अनम्यूट नहीं कर सकेगा, या मैं अब कर दूं, आपने बीच में से बोलना नहीं है। अगर मैं अलाउ कर देता हूं तो फिर मैं अब अलाउ कर रहा हूं, नहीं तो बाद में मैंने अलाउ नहीं करना, फजूल का नहीं बीच में बोलना। अलाउ कर दिया, तो ये आपके पास जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास याद, तो दिस विल बी दिस आपके पास किया, ठीक है। मैं पुटिंग दिस वैल्यू इनटू द अबव इक्वेशन, आपके पास अगर यही वैल्यू आप अबव इक्वेशन में पुट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ ये पुट करते हैं, यहाँ, ठीक है। ये आपके पास यहाँ वैल्यू पुट करते हैं आप, तो आपके पास एच डी एच किसके बराबर आ गया? ठीक है, ये आप वैल्यू इसमें पुट कर दोगे, ये आप वैल्यू पुट करो तो ये आपने नोट कर लिया, ऐसे मैं डिलीट कर अरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये वैल्यू आपने यहाँ पुट कर देनी है। सर ये वाली स्लाइड भी अपलोड कर दीजिएगा काइंडली स्लेट पे। अच्छा, आपके साथ के लेक्चर जो है, कल के भी लेक्चर अपलोडेड है, आपका साथ के साथ सब लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, और ये यूट्यूब पे भी मैं इंशाल्लाह। जी जी सर, थैंक यू। आपका सब लेक्चर्स थैंक यू सर। तो आपके पास डी एच किसके बराबर आ गया? तो डी एच आपके पास आ जाएगा डी पी, एक मिनट ऐसे लिखना है। डी एच आपके पास किसके बराबर आ जाएगा? डी ई के क्योंकि माइनस पी डॉट के डी क्यू के। तो रिजल्ट आपका now the result is changing with respect to, so this implies that your h is the function of, now h is function of
Q and P, Q and PQ इसका फंक्शन या इस क्वेश्चन को हम जो है इसको हम इक्वेशन x कह देते हैं। तो इससे जो जैसे हमने पहले किया था तो DH किसके बराबर आ जाएगा, पार्शल H ओवर पार्शल। अजान के लिए थोड़ी सी रुक ना जाए, एक सेकंड। सर मीटिंग में 10-12 पार्टिसिपेंट्स रह गए हैं मेरा ख्याल। कोई तो बात देख नहीं, लें आप। वो बाकी रिकॉर्डिंग पे चलता है, सुनो। ठीक है, ये हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जो है ना बाकी रिकॉर्डिंग में सुनना। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, आपके पास ये दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसकी वजह से ये के इज कंटेक्टिंग विद दिस सॉरी यहाँ भी के आना चाहिए और यहाँ भी टीपी ये मसला आ रहा है। के टीपी यहाँ किया, हाँ थोड़ा सा मसला आ रहा है। एक मिनट, हमें कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं। ओके एच डी पी के इसको हम उसी तरीके से रहेंगे। ये टीपी ये हमारे पास के था और ये हमारे पास या हम इसे उसूली तौर पे हमें जो है ना वो लिखना पड़ेगा पार्शल H ओवर पार्शल Q के डी क्यू के प्लस पार्शल H ओवर पार्शल, हमें इसके साथ करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा के और डी पी सॉरी ये के हम कोवरेंट को कंट्रोल सॉरी हमें ऐसे करना पड़ेगा। एक मिनट, डी पी के टेंसर के रूल के मुताबिक जैसे मैंने वो आपको पढ़ाया था, यहाँ क्या आएगा ये और हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं प्लस पी के आ जाएगा। ये हमारे आपके पास टी को मैं इधर ले आया हूँ तो ये चला जाएगा सब्सक्रिप्ट में और इसमें। ठीक है, सब्सक्रिप्ट में चला जाएगा ये वाला डीपी वाला, और जो ये आप वाला है ये जो सुपरस्क्रिप्ट में था ये चला जाएगा। जो चीज सुपरस्क्रिप्ट में है सब्सक्रिप्ट में चली जाएगी, जो सब्सक्रिप्ट में है सुपरस्क्रिप्ट में। लेकिन आपकी ये ना ये सारा चीजें सुपरस्क्रिप्ट में थी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सब्सक्रिप्ट में। अब ठीक है, अब तीन सब ठीक है।
डीपी जो है ये चीज जो है, सॉरी येलो ले लेता हूँ, ये चीज जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी इसमें, और ये जो चीज है ये कन्वर्ट हो जाएगी इसमें, ठीक है। ये जो के कॉलम वाला था ये रो में बन गया, जो रो वाला के था वो कॉलम में हो गया, इसलिए ऑर्डर भी चेंज करना पड़ा, ठीक है। क्लियर हो गया? जी सर। और अब हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं। हम कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं डी के क्यू के और जो है ना पी क्यू के। तो अब कोफिशिएंट को बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट आपके पास क्या आ जाएगा, वो हैमिल्टनियन इक्वेशन आ जाएंगी। हैमिल्टन यानी एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे हम, ये हमारे पास इक्वेशन वाई आ गई, ठीक है। इन दोनों के हम कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। कोफिशिएंट कंपेयर, ये चीज जो है ये बराबर हो गई कोफिशिएंट डी क्यू के कोफिशिएंट को डी क्यू के कोफिशिएंट से कंपेयर करने से ये चीज आपके पास आ गई माइनस इसके बराबर। सॉरी, इसके बराबर, ये आपके इसके बराबर आ गया, ठीक है। और सॉरी, और डीपी की इसके कोफिशिएंट कंपेयर करने से आपके पास ये चीज इसके बराबर आ गई। क्लियर हो गया? तो इसको ये दोनों चीजें ये इसके बराबर आ गई, वो इसके, दिस इज कॉल्ड हैमिल्टनियन। ये भी यानी ये भी इक्वेशंस आपके पास रिजल्ट आ गई। मैं इसको एक दफा दोबारा भी लिख देता हूं। तो यानी आपके पास पार्शल एच ओवर पार्शल क्यू जो है क्यू के, ये चीज किसके बराबर आ गई आपके पास, सर माइनस पी डॉट के माइनस पी डॉट के। ये ध्यान में रखना, ये इनके सुपरस्क्रिप्ट और सब्सक्रिप्ट। एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई, ठीक है, एक रिजल्ट आपके पास ये आ गया, और दूसरा आपके पास क्या रिजल्ट आया सर, पार्शल एच ओवर पार्शल पी पार्शल के पार्शल एच, सॉरी, दूसरा रिजल्ट आया आपके पास पार्शल एच ओवर पार्शल पी के। दिस विल बी पी के इज इक्वल टू क्यू डॉट के। क्यू डॉट के सर आ जाएगा, क्यू डॉट के, ठीक है। यस सर। ये लिख लो, बस यही आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो क्यू डॉट के आ जाएगा सर। क्यू डॉट के। अच्छा, जो चीजें ज्यादा अहम नोट करने वाली हैं, ये दो क्वेश्चंस आपके पास तकरीबन काफी क्वेश्चंस आ गए ना, वो सारी जो है वो आपने याद करनी है, ठीक है। एक ये आ गई। अच्छा, ये ज़हन में रखना, रिजल्ट 2 हो गया सर, ये है एक वो लग्रांजियन वाला, चार एक्सरसाइजें आ गई ना, हमने 4 एक्सरसाइजें प्रूव, सॉरी 4 इक्वेशंस निकाली हैं, ठीक है। तो पार्शल एच, अच्छा ये ज़हन में रखना, यहाँ मैंने जो बताने वाली ज्यादा जरूरी चीज है, मैं थोड़ा सा इसे इस्तेमाल कर दूं, जूम इन कर देता हूं। अच्छा, जो जरूरी बताने वाली बात है, यहाँ ये देखो के जो है ना सुपरस्क्रिप्ट आ रहा है,
तो आगे क्या आना चाहिए, सबस्क्रिप्ट। ऐसे ही आ रहा है, सबस्क्रिप्ट ही आ रहा है, ठीक है। ये क्या आ गया है, सर साइड पे क्लिक करे शायद चला जाए। ये बीच में क्यों आ गया, चला गया। अच्छा, Yes. ये आपके पास के जो है ना, ज्यादा ही छोटा होगा। अच्छा, ये जो के है ना, आप ये देखो, ये एज ए ना सुपरस्क्रिप्ट आ रहा है ना, तो आगे जाके जो डिवीजन में नोमिनेटर में ये ना सुपरस्क्रिप्ट होता है, वो क्या होता है असल में, सबस्क्रिप्ट होता है, ठीक है। ऐसे ही क्या है ना, सबस्क्रिप्ट ये बिल्कुल उसी तरह ही आ रहा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ जो सबस्क्रिप्ट है वो आगे जाके क्या आ रहा है, सुपरस्क्रिप्ट। जो नोमिनेटर में सबस्क्रिप्ट है वो नोमिनेटर ही कहते हैं ना, और नहीं, उल्टा तो नहीं बोल रहा, डिनोमिनेटर में जो सुपर, मेरे ख्याल उल्टा बोल रहा था जी, डिनोमिनेटर में जो सबस्क्रिप्ट है दूसरी नॉमिनेटर में जाके सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में जो सबस्क्रिप्ट है नॉमिनेटर में जाके सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। सर ऐसे ही कहना चाहिए, ठीक, हाँ, ये कहना चाह रहा हूँ। और आपके पास जो कॉलम इंडिसेस है, दैट विल बी रिमेन द कॉलम इंडिसेस, एंड जो रो इंडिसेस है वो रो इंडिसेस ही रहेगा, ऐसे ही है। ओके सर। और Yes, आपके और हमने आज कितनी इक्वेशंस प्रूव की हैं, एक्सरसाइज कितनी इक्वेशंस ड्राइव की हैं, 4 इक्वेशंस ड्राइव की हैं, ठीक है। एक पार्शल एल ओवर पार्शल क्यू डॉट, वो पी क्यू के बराबर था, वो ड्राइव की थी। एक पार्शल एल ओवर पार्शल क्यू था, वो पी क्यू के बराबर था, वो वाली ड्राइव की थी। और 2 ये हो गई, टोटल देयर आर 4 इक्वेशंस, ठीक है। यस सर, 4 हो गई टोटल। वैसे असूलन 5 की है, वो एक वो पोटेंशियल वाली भी की है ना, वो 0 जो किया है हमने। हाँ जी, वो तो वैसे पहले भी प्रूव की हुई थी ना हमने।